Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss oxidation of alcohol. Okay. Now to carry out the oxidation of alcohol, what kind of reagent we required? Okay. That things we are going to be study in this session. Okay. So now without wasting our time, we are going to be starting with the main session that how we are going to do the oxidation of alcohol. Okay. So just take a look. When we perform the oxidation of alcohol, we require the following types of the reagent. Okay, so in that your first reagent will be the Collins reagent, second Jones reagent, third PCC और PDC. PDC का मतलब है pyridium dichromate और यहाँ पर इसका मतलब होता है PCC का pyridium chlorochromate. Fourth is Swern oxidation or Moffat oxidation. Fifth, silver carbonate and manganese oxide will be the sixth. So these are the some of the following reagent that we are going to be utilized to carry out the oxidation of alcohol. Okay. Now basically oxidation of alcohol depending upon their what type of the substrate we are going to be used. Suppose your substrate are having aldehyde group, so that if your substrate having the primary alcohol group, so after the oxidation you will get the aldehyde product. But just suppose your alcohol are having the secondary alcohol, means your substrate will be the secondary alcohol, then they are going to be converting into the ketone type of the product. So depending upon the what type of the substrate you are going to be utilized, you will get the different kind of the product. Okay, so in this session I am going to be talking about the PCC reagent briefly. Okay, so there are actually 6 reagents. By using that we are going to be oxidize the alcohol, but in this session we are talking about only the PCC. So by using the PCC means pyridium chlorochromate, how we are going to be oxidize the alcohol into the different kind of the product. So just take a look. Now PCC का यहाँ पे मतलब होता है full form the pyridium chlorochromate. It is actually the combination of the 3 chemicals like your pyridium, chromate, CrO3. Now here playing the major role will be the chromate in this compound. So chromate का यहाँ पे major role होता है, and third will be the HCl. So because of the presence of the HCl chemicals, the pyridium chlorochromate having the slightly acidic in nature, and these are the actually structure of your pyridium. So this is the pyridium and this is the chromate combined with the HCl. So this is the final structure. Now by using this structure we are going to study the mechanism part. So the major role of the pyridium chlorochromate as a major organic reagent, which group they are going to be oxidized. तो सबसे पहले तो इसका जो मेजर रोल हम लोग इस सेशन में स्टडी करने वाले वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. मीन्स योर अल्कोहल आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड. मीन्स इफ इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल देन इट इज कन्वर्टिंग इनटू द अल्डेल. इफ इट इज अ सेकेंडरी सबस्ट्रेट, सेकेंडरी अल्कोहल, then it is going to be ketone. There are the some of the application part of the PCC. Means apart from the alcohol they are also converting the organoboranes. Even though your tertiary allylic alcohols, tertiary benzylic alcohols, then again they are going to be converting the active methylene group, furan ring system. Even though your enol ether, okay, that is also going to be converting into the lactone group. Okay, then there will be the cationic cyclization also taking place. So these are the some of the application we are going to be study through the different kinds of the means your example. So आपको exactly समझ में आएगा when I am going to be adding the PCC in any type of the substrate, then how it is going to be converting into the carbonyl containing compound. तो basically आप अगर यहाँ पर चेक करोगे स्टूडेंट, तो इसका रोल क्या होता है, जस्ट टेक अ लुक. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी रिएक्शन जब आप स्टडी करते हो तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट यू आर गोइंग टू बी टेक द सबस्ट्रेट. बराबर, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेते हो सबस्ट्रेट, देन दैट सबस्ट्रेट हैज़ टू बी रिएक्टेड विद द रिएजेंट. दोनों का यहाँ पे रिएक्शन होगा. देन दे गो थ्रू द इंटरमीडिएट एंड वाया इंटरमीडिएट दे विल गेट द फाइनल product. So these are the actually completely steps you are going to be followed for any kind of the general reaction और the mechanism में आप study करते हो. तो यहाँ पर जो आपका substrate जो use करने वाले हो वो है आपका यहाँ पर either primary alcohol और the secondary alcohol. ओके, अब reagent जो use होगा इस केस में वो होगा आपका PCC. ठीक है, देन इंटरमीडिएट हम लोग देखेंगे बिकॉज बाय यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट तो आपका फिक्स है, बट बाय यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट विल बी द चेंज, वो हम लोग चेक करेंगे. एंड देन फाइनली जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आइदर अल्डेहाइड और आइदर कीटोन. Sometimes we also get the lactone. Lactone also again part of the ketone only. So these are the actually some of the product we will get over here. ठीक है, अब
यहाँ पर exactly how we will get product mean these substrate how converting into the product. First we should understand the mechanism part, because from the mechanism you came to know exactly कि procedure यहाँ पे क्या हो रहा है, how things are going to be work out. तो just take a look. Suppose now over here I am going to be taking the any compound. Suppose यहाँ पे मैंने example लेती हूँ फर्स्ट में कोई भी अल्कोहल का, तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. सपोज दिस इज माई स्ट्रक्चर OH, ये मैंने ग्रुप यहाँ पे अभी ले लिए. अभी आप यहाँ पर बात करोगे ऑक्सीजन जो कनेक्टेड है 1 कार्बन और यहाँ पे है कार्बन डेफिनेटली. तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका प्राइमरी, बिकॉज ये एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपका वो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट किस में होगा स्टूडेंट, अल्डेहाइड ग्रुप में. तो आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, इफ आई एम गोइंग टू बी ऐड द PCC, तो अभी यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका अल्डेहाइड. ठीक है, तो ये आपको फाइनल में प्रोडक्ट, तो ये C डबल बॉन्ड OH में ग्रुप आपका जो है वो कन्वर्ट होगा. बट ये तो आपको पता चला बाय यूजिंग दिस ट्रिक, बट एग्जैक्टली व्हाट विल बी द मैकेनिज्म. सो जस्ट टेक अ लुक. नाउ मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास. अब आपके पास जो ग्रुप है स्टूडेंट वो देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या है, पिरिडीन है, क्रोमियम 3 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है, एक O नेगेटिव और एक Cl है. तो हम लोग पहले तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर लेते. तो यहाँ पे क्रोमियम डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर है Cl. तो सबसे पहले अटैक कैसे होगा, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिच हमारा ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा क्रोमियम के ऊपर. ठीक है, देन इमीडिएटली द पाई बॉन्ड ऑफ द क्रोमियम एंड ऑक्सीजन विल बी ब्रेक डाउन एंड गो टू द हेड ऑफ द ऑक्सीजन. सो दिस विल बी द योर स्टेप नंबर 1. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो फिर क्या होगा बाद में. सो द हियर ऑक्सीजन जो है वो क्रोमियम के साथ यहाँ पे पहले बॉन्ड कर लेगा और यहाँ पे साइन होगा प्लस जनरेट. यहाँ पर तो ऑलरेडी आपका हाइड्रोजन है, ए यहाँ पर O नेगेटिव. अब ये जो डबल बॉन्ड O था वो हो गया यहाँ पे O नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑलरेडी है और यहाँ पर आपका ऑलरेडी Cl ग्रुप. तो ये इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मिला. सो यू विल गेट दिस इंटरमीडिएट इन every cases after the addition of the lone pair of electrons along with the chromium. नेक्स्ट अभी स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा. क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर. अब प्रोटॉन ट्रांसफर आपका कैसे होगा यहाँ पर, सो जस्ट टेक अ लुक हाउ द प्रोटॉन विल बी ट्रांसफर ओवर हियर. सो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर ऑलरेडी आपका 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है. ये क्या करेगा, पहले तो यहाँ पे माइग्रेट करेगा और ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करेगा. सो गेटिंग द ऑक्सीजन स्टेबलाइज, दिस H+ विच इज गोइंग टू बी रिमूव ओवर हियर, दिस H+ विल बी कंबाइन विद द वन ऑफ द ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन आयन है उसके साथ वो कंबाइन होगा. तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ स्टूडेंट. इसके बाद का प्रोडक्ट जस्ट टेक अ लुक आफ्टर द प्रोटॉन ट्रांसफर. तो आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. ऑक्सीजन यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ, सॉरी ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन है. सो यू विल गेट क्रोमियम डबल बॉन्ड OH, बिकॉज यहाँ पे जो निकला H+ हम लोगों ने इसके साथ कंबाइन किया, यहाँ पे O नेगेटिव, Cl जो है मैं यहाँ पे नीचे डाल देती हूँ. ठीक है, तो आपको ये कंपाउंड मिला, तो ये आपको जनरेट हुआ. अब हाइड्रोजन की यहाँ पे CH2 के ऑलरेडी 2 H ग्रुप यहाँ पर है, तो आपको फाइनली ये स्ट्रक्चर मिला आफ्टर द प्रोटॉन ट्रांसफर. जो यहाँ पर था प्रोटॉन वो हम लोगों ने ट्रांसफर किया टूवर्ड्स दी वन ऑफ दी ऑक्सीजन आयन के पास. अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी द मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो O नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा. एज सुन एज यू आर गोइंग टू बी ट्रांसफर ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल बी टेकिंग प्लेस, द Cl- ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड वेरी इजीली बिकॉज इसी इलेक्ट्रॉन है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका Cl- जो ग्रुप था वो यहाँ से एलिमिनेट हुआ. तो देख लीजिए फिर स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, O नेगेटिव, क्रोमियम, C डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O. सो दीज आर द फाइनल मोइटी. अब यहाँ पर देख लो आपके पास 2 है यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl- जो हमारे पास यहाँ पे जो निकला था. अब ये Cl- क्या करेगा, वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको यहाँ पे HCl मिलेगा. इमीडिएटली द हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन दिस दे आर गोइंग टू बी ब्रेकिंग डाउन एंड माइग्रेट टूवर्ड्स हियर. ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, इमीडिएटली द बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन विल गेट ब्रेक डाउन एंड माइग्रेट टूवर्ड्स द हेड ऑफ द क्रोमियम एंड एट द सेम टाइम इमीडिएटली दिस विल बी माइग्रेट ओवर हियर. ठीक है, तो अब टोटल जो फाइनल यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा स्टूडेंट, द स्ट्रक्चर विल बी C. अब यहाँ पे आपका बना डबल बॉन्ड हाइड्रोजन जो H+ यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पर जो है फाइनली जो क्रोमियम का जो ग्रुप निकलेगा वो क्रोमियम होगा आपका C डबल बॉन्ड OH और अनदर, बिकॉज ये O नेगेटिव है अगेन दैट विल बी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द PCC विल बी एसिडिक, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एंड फाइनली यू विल गेट जो आपका ऑलरेडी
स्ट्रक्चर में जो था pyridine वो आपको यहाँ पे एज सच मिलेगा। तो आप अगर देखोगे यू आर स्टार्टेड विद जो आपने जो क्रोमियम लिया था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पर स्टूडेंट होता है वो होता है क्रोमियम 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपका क्रोमियम 6 गेट रेड्यूस्ड इनटू द क्रोमियम 4। तो यहाँ पे इनका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइज स्टेट में। तो आपका क्रोमियम 6 जो होता है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द क्रोमियम 4 इनटू द मैकेनिज्म एंड फाइनली यू विल गेट ओवर हियर द अल्डेहिड ग्रुप। सो दिस इज हाउ द ओवरऑल द मैकेनिज्म विल बी टेकिंग प्लेस। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व एंटायर थिंग। अब आपको आई थिंक सो समझ में आया होगा कि अब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो ये कन्वर्ट होगा अल्डेहाइड में। अब अगर समझो मान लीजिए यहाँ पर आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता तो यहाँ पे आपको कीटोन प्रोडक्ट मिलता। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म विल बी टेकिंग प्लेस। नाउ जस्ट टेक अ लुक, वी आर गोइंग टू बी सॉल्व विद द सम ऑफ द एग्जांपल्स। मैंने यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिए हैं। सो जस्ट टेक अ लुक। अब यहाँ पे है बेंजीन CH2OH ग्रुप अटैच है। सिमिलर जो मैंने अभी सॉल्व करके दिया था आपको वही मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस CHO ग्रुप विल बी कम्प्लीटली कन्वर्टिंग इनटू द अल्डेहाइड, ठीक है। सो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए। अब मान लीजिए कोई मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें अपार्ट फ्रॉम दी अल्कोहल ग्रुप इज देयर एनी डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, PCC जो होता है इट गेट्स इजीली ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल, ओके। अल्कोहल को इजीली ऑक्सीडाइज करेगा इनटू द कार्बोनिल ग्रुप। बट सिंस योर मीडियम जो PCC है इट इज अ मीडियम ऑफ व्हाट एसिडिक, सो देयर विल बी द सम ऑफ द साइड रिएक्शन ऑल्सो गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस, ओके। तो यहाँ पे कुछ साइड रिएक्शन भी होता है। इफ वी आर गोइंग टू बी प्रिवेंट दैट साइड रिएक्शन, सो इन दैट एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू बी एडिंग द बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है एंड देन फर्दर रिएक्शन विल बी द स्टॉप। तो वो आगे जाके रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है। तो फॉर द टू प्रिवेंट द साइड रिएक्शन ऑफ द PCC वी आर गोइंग टू बी यूज द व्हाट हियर बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मतलब वाटर के साथ, या फिर यहाँ पर हम लोग दूसरा भी बफर सॉल्यूशन लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं NaH2PO4 या फिर हम लोग लेते हैं NaHPO4। सो दीज आर द सम काइंड ऑफ एक्चुअली बफर सॉल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू बी carried out to prevent the further oxidation, further their reaction. But what will happen, suppose you have the such type of the compound in which you have the double bond as well as the OH group also, okay. So in that condition if you are not going to use the buffer solution तो वहाँ पे आपका क्या होता है, cyclization will be definitely taking place। आया समझ में। तो मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, अगर आपके कंपाउंड में अल्कोहल भी है, डबल बॉन्ड भी है और बफर सॉल्यूशन नहीं है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक इन नेचर देयर विल बी द फर्दर साइक्लाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो अभी देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है केमिकल PCC ओनली द रिएजेंट है प्रेजेंट विद द CH2Cl2, बट अब यहाँ पे बफर सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आपका जो OH जो ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, दैट विल बी फर्स्ट ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पर, किसमें, into your aldehyde group, and again these aldehyde group will be attacked by this double bond and then they are going to be converting into the cyclization. So this is the actually simple mechanism of your दिस एंटायर ग्रुप। तो ये यहाँ पे याद रखना है। बट अगर हमें यहाँ पे फर्दर इसका रिएक्शन स्टॉप करना है तो आई एम गोइंग टू बी एडिंग द बफर सॉल्यूशन। सो बाय एडिंग द बफर सॉल्यूशन ओनली द अल्कोहल ग्रुप आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज इनटू द अल्डेहाइड और डबल बॉन्ड के ऊपर यहाँ पे उसका कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। तो यही दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बताती हूँ हाउ द साइक्लाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस। सो सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये है आपका रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो OH ग्रुप है यहाँ पर आपका, तो वो तो सबसे पहले कन्वर्ट किस में हुआ, डबल बॉन्ड OH में, डबल बॉन्ड यहाँ पे है H, ठीक है। तो ये तो पहले अल्डेहाइड ग्रुप कन्वर्ट हुआ इस ग्रुप में ना। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू दिस ग्रुप व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो ऑक्सीजन है बिकॉज ऑफ द एसिडिक मीडियम ये क्या करेगा, H+ जो है सपोज एसिडिक नेचर है बराबर। अब ये लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे H को, और जैसे ही इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे ये पूरी जो मॉइटी है स्टूडेंट, इसको मैं कंसीडर कर रही हूँ R, ठीक है, ताकि वो लिखने में इजी पड़े। तो सपोज ये R ग्रुप है अभी यहाँ पर। अब ये यहाँ पर देख लो क्या होगा, C डबल बॉन्ड जो O था आपका यहाँ पर, H को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस साइन विल बी जनरेटेड और यहाँ पर H आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, ये जो मॉइटी है R वाली जो ग्रुप है इसका मैं सिर्फ डबल बॉन्ड यहाँ पर चाहिए तो दिखा लेती हूँ, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड है सपोज, सो दिस विल बी द R ग्रुप, ये डबल बॉन्ड है। अब इमीडिएटली क्या होगा, द डबल बॉन्ड का जो ये टर्मिनल जो आपका कार्बन है ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। इमीडिएटली दिस बॉन्ड विल बी माइग्रेटेड, और जैसे ही बॉन्ड माइग्रेट होगा तो यहाँ पे जो भी आपके नंबर ऑफ कार्बन होंगे काउंट कर लीजिए, तो यू विल गेट हियर 6 मेंबर्ड रिंग
और यहाँ पे आपका क्या होगा, OH फॉर्म होगा, तो ये यहाँ पे रिंग बना लेगा, ये बॉन्ड जो है सिंगल कन्वर्ट होगा OH में, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। और यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी ये H प्रेजेंट था ही, ठीक है। और जो है यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन आएगा, जो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड था, चाहिए तो आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, द H जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे नीचे आएगा, और जो H प्लस जो है आपके सॉल्यूशन में जो Cl माइनस था वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंड देन फाइनली हियर यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो देख लीजिए, अब OH आपको यहाँ पर मिला, फिर से आपको अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्कोहल। फिर इन द लास्ट स्टेप अगेन इन दिस यू आर गोइंग टू बी एड द PCC, and then after adding the PCC this bond will be converting into the ketone. So this is how you will get this product. तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है, साइक्लाइजेशन होता है अगर आपने इसमें बफर सॉल्यूशन को ऐड नहीं किया। बट सपोज इन द सेम क्वेश्चन with the PCC reagent you are going to be add the buffer solution, so only the alcohol get oxidized into the aldehyde the without affecting the double bond. तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। So whenever you are going to be approach the any question in the final examination you should see कि आपको कौन से रिएजेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए गए, वेदर इट्स अ PCC अलोन विद द CH2Cl2 और इज देयर एनी बफर सॉल्यूशन। अगर बफर सॉल्यूशन नहीं है तो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट आगे जाके कन्वर्ट होगा साइक्लाइजेशन में, बट अगर बफर सॉल्यूशन है तो ओनली ऑक्सीडाइज होगा आपका अल्कोहल ग्रुप, डबल बॉन्ड डजंट गेट अफेक्टेड। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर अगर मान लीजिए इफ इन योर कंपाउंड इन द सबस्ट्रेट देयर विल बी द 1,4 डायल और द 1,5 डायल, ये ग्रुप अगर अभी ये मान लो कोई 1,4 है या फिर कोई 1,5 डायल कंपाउंड्स आपके सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू बी एड द PCC रिएजेंट, सो दोज कंपाउंड कन्वर्टिंग इनटू द लैक्टोन प्रोडक्ट, किसमें उसका कन्वर्जन होगा, लैक्टोन में उसका कन्वर्जन होगा। सो दिस ग्रुप गेट अगेन कन्वर्टिंग इनटू दिस मोइटी, मैकेनिज्म सेम होगा ना। आउट ऑफ द व्हाट 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप में से वन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप व्हाट फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू व्हाट यूर, किस में कन्वर्जन होगा उसका, अल्डेहाइड में कन्वर्जन होगा। आफ्टर द कन्वर्टिंग इनटू द अल्डेहाइड ग्रुप द ऑक्सीजन जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द अल्डेहाइड एंड दे मेक द साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो दिस इज द अगेन मैकेनिज्म ऑफ दिस केमिस्ट्री, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको डिफरेंटली फिर से समझा दूंगी, ठीक है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मान लीजिए ये देखो एग्जाम्पल जो जून 2011 में पूछा था। अब मान लीजिए आपके सबसे में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बट इन द सेम स्ट्रक्चर यू हैव द 2 अल्कोहल ग्रुप है। जैसे मैंने बोला था कि इसमें मान लीजिए डायोल्स होते हैं, तो इसका कन्वर्जन किस में होगा स्टूडेंट, व्हाट आई सेड, इनटू द लैक्टोन। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, आप चेक कर लीजिए व्हेनेवर यू विल गेट द एनी सबस्ट्रेट, तो पहले चेक कर लो वो डायोल है, 1,5 डायोल है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये डायल स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली इसका कन्वर्जन किस में होगा स्टूडेंट, लैक्टोन में। तो ये कुछ इस तरीके से आपको फाइनल स्ट्रक्चर जाके मिलेगा, ठीक है। तो this will be your final structure. Again by adding the final structure in the PCC you will get over here finally O लैक्टोन रिंग मिलेगा और अल्कोहल का कन्वर्जन होगा कीटोन ग्रुप में। तो ये आपको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इतना ही रखना। अब देखो याद रखो, मैंने आपको बोला था कि PCC जब आप लेते हो ना तो देयर विल बी द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन दैट इफ इन योर सबस्ट्रेट देयर विल बी द बेंजीलिक अल्कोहल और द अलाइल अल्कोहल प्रेजेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सबसे पहले जो कन्वर्जन होता है वो होता है आपका बेंजीलिक अल्कोहल का और अलाइलिक अल्कोहल का, देन प्राइमरी देन सेकेंडरी। बट अगर वहाँ पे टर्शरी अल्कोहल है तो वहाँ पे वो रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। अब नो रिएक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास अगर ये यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, इसका मैंने PCC में रिएक्शन किया तो आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए ये है मेरा प्रोडक्ट, यहाँ पर है मिथाइल, OH ग्रुप और ऑक्सीडाइज, तो आपको डबल बॉन्ड O यहाँ पे मिलेगा। तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे जनरेट हुआ तो सीधा कार्बन वैलेंसी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई हो नहीं हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेनेवर देयर विल बी द टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट, तो उसमें आपको अगर PCC रिएजेंट आपने ऐड भी किया तो वहाँ पे आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी। अगर मान लो आप बोले कि टर्शरी अल्कोहल में रिएक्शन है, तो आप इस एग्जाम्पल को भी वैसे ही अंडरस्टैंड करोगे, बिकॉज OH अटैच है 3 कार्बन के साथ 1 2 3, तो आप समझोगे यहाँ पर उसका रिएक्शन नहीं होगा, बट ऐसे नहीं होता है। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो ये आपके अगर पोजीशन देखोगे तो ये पोजीशन है विनाइलिक, ये अटैच है इस कार्बन को, तो ये वो अलाइलिक अल्कोहल। तो टर्शरी अगर अलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली रिएक्शन देगा, ठीक है। याद रखो सिर्फ टर्शरी अल्कोहल अलोन है तो नो रिएक्शन, बट अगर टर्शरी
अलाइलिक अल्कोहल होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली आपकी रिएक्शन क्या होगी, आप कैरिड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा फाइनली वो क्या मिलेगा, जस्ट टेक अ लुक। अब सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, मैं आपको मैकेनिज्म थ्रू ही बता देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। बॉन्ड बना लेती हूँ, डबल बॉन्ड, यहाँ पर है आपका मिथाइल, यहाँ पर है आपका OH, और OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपके पास है क्रोमियम डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका Cl, यहाँ पर है आपका O नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या होगा, हाउ द बॉन्ड विल बी, दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक टू द क्रोमियम, ऑक्सीजन गेट अहेड। अब देख लीजिए फिर बाद में क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप मिथाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर लिया क्लोरीन के क्रोमियम के साथ, क्लोरीन ऐसे के ऐसे, डबल बॉन्ड O नेगेटिव यहाँ पर है, ये बना यहाँ पर O नेगेटिव, ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला बराबर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट टेक अ लुक। अब यहाँ पे क्या होगा, द बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड दैट गेट ब्रेक डाउन एंड दे माइग्रेट टुवर्ड्स द हियर। जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा तो अब ये आप अगर देखोगे ना, तो वेनेवर यू शुड कंसीडर दिस टाइप ऑफ द मैकेनिज्म, तो यहाँ पे एक्चुअली होता है आपका स्टूडेंट 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो ये याद रख लो, वेनेवर यू आर सबस्ट्रेट हैविंग टर्शियरी अलाइलिक अल्कोहल, तो वहाँ पे आपका मैकेनिज्म होता है 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 3,3 सिग्मा टॉपिक में मैंने लास्ट टाइम भी पेरिसाइक्लिक का जब चैप्टर बताया था, आपको एक ट्रिक दिया था, फर्स्ट यू शुड असाइन द पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले असाइन करते पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, क्योंकि जो हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसको मैंने दिया 1, क्रोमियम गेट्स 2, ये ऑक्सीजन है आपका 3 पोजिशन। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रंट ये आपका 1, 2, 3। अब 3,3 सिग्मा टॉपिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है, 3 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड होगा। तो ये बॉन्ड जो है माइग्रेट टुवर्ड्स करेगा यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे, इमीडिएटली ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा ताकि कार्बन की वैलेंसी बची रहे। इमीडिएटली द बॉन्ड बिटवीन द 1,1 पोजीशन, ये यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होगा मतलब ये बॉन्ड कहाँ पे माइग्रेट करेगा, टुवर्ड्स दी ओवरहियम। ठीक है, अब देख लो ये पूरा हुआ कंसर्टेंट मैकेनिज्म। तो फाइनली ये पूरा कंसर्टेंट मैकेनिज्म के बाद जो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब ये तो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ बराबर, तो यहाँ पर सिर्फ बचा क्या आपके पास, मिथाइल, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे किसके साथ फॉर्म हुआ, विद ऑक्सीजन बराबर। अब ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पे बॉन्ड आपका जो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म होगा, इसके साथ है क्रोमियम, क्रोमियम के साथ ऑलरेडी आपका यहाँ पर Cl है, और ये जो था वो एक जो था एक O नेगेटिव है और एक बना आपका C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और वन मोर O नेगेटिव यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो आपको फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो बॉन्ड बना इनके बीच में, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी द 2 O नेगेटिव ग्रुप्स आर देयर, तो मैंने अटैच कर लिया Cl। ठीक है, तो ये आपको फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा इंटरमीडिएट। एंड इन द लास्ट स्टेप, अब ये सबसे ज़रूरी है, ये इंटरमीडिएट मिलने के बाद अगेन आपके पास PCC है, HCl अगर मान लो मैंने ऐड कर दिया, कोई भी एसिडिफिकेशन किया, सो आफ्टर द एसिडिफिकेशन दिस बॉन्ड विल गेट ब्रेक डाउन एंड यू विल गेट फाइनली ओवर हियर द मिथाइल, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये आपको मिलेगा यहाँ पे OH। ठीक है, तो अभी फिर से आप अगर देखोगे आफ्टर द एसिडिफिकेशन यू विल गेट OH। अगर सेम स्ट्रक्चर में फिर हम लोगों ने यहाँ पे डालना है PCC, तो यहाँ पर फाइनल जो आपको मिलेगा मिथाइल ग्रुप और ये OH कन्वर्ट होगा कीटोन में। सो दीज आर द एक्चुअली कंप्लीट मैकेनिज्म, ओके, थ्रू विच यू आर टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल कन्वर्टिंग इनटू दिस कीटोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना एग्जाम में इतना मैकेनिज्म आपको नहीं याद होता है, 3,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट नहीं याद आ रहा है, तो सिर्फ एक काम कर लो, देखो अलाइलिक अल्कोहल है, यहाँ पर पोजीशन देखो, उनकी पोजीशन हम लोग पहले चेक करते हैं। ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। तो बॉन्ड जो है ना वो आपका माइग्रेट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल नहीं देना है, विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड देना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड में आपका है हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच, तो आपका जो प्रोडक्ट में बॉन्ड जो है ना वो माइग्रेट होगा इन बिटवीन 2 और 3 हमेशा। ठीक है, वो जो फर्स्ट जो पोजीशन है ना वहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप अटैच होगा। ये चीजें यहाँ पे याद रख लो। वेनेवर यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन द टर्शरी अलाइलिक सबस्ट्रेट, 2 और 3 में आप डबल बॉन्ड लगा दो और फर्स्ट पोजीशन पे आपको क्या करना है, कीटोनिक ग्रुप ऐड कर देना है, यू विल गेट योर फाइनल करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 के। अब देख लो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो ये मेरा टर्शियरी अल्कोहल है, PCC CH2Cl2 डाला। तो अब देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ग्रुप में बना लेती हूँ पहले स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये यहाँ पर है ऐसे,
यहाँ पर है मिथाइल, यहाँ पर OH रहने दो, ये है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, ये यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है बराबर। तो अब स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बनेगा, अलाइलिक अल्कोहल ना, तो पहले पोजीशन देते हैं हम लोग 1 2 3। तो मैंने क्या बोला था, 2 और 3 के बीच में हमेशा आपका क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका आएगा कीटोन। तो यहाँ पे कीटोन डाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए, तो ये होगा आपका फाइनल उसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है ट्रिक, तो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। अब 9 वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको दिया है ये वाला कंपाउंड, OH ग्रुप है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, बट अभी यहाँ पे क्या है, बफर सॉल्यूशन है। तो जहाँ पर भी मैंने बोला था आपको, अगर बफर सॉल्यूशन नहीं होता तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होता, बट PCC रिएजन आपको NH4Cl बफर सॉल्यूशन के साथ दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप ओनली गेट्स ऑक्सीडाइज। तो अब देख लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा इसके लिए, ये यहाँ पर है, तो ये OH, तो ये यहाँ पर CHO ग्रुप लगेगा, ये पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ, सो यू विल गेट हियर CHO, तो यहाँ पे आपको अल्डिहाइड मिलेगा। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी सॉल्व। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन है PCC-CH2, बट अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेस में क्या डाला है, यहाँ पर NaOH भी डाला है, तो देयर इज नो एनी बफर सॉल्यूशन, बट एक्वस मीडियम में रिएक्शन कैरिड आउट करना है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। सो इन दिस केस यू विल गेट द साइक्लाइजेशन। तो साइक्लाइजेशन के बाद जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट, दैट प्रोडक्ट विल बी, अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आफ्टर द साइक्लाइजेशन यू विल गेट द कीटोनिक ग्रुप। तो ये पूरा यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा एंड यू विल गेट इसका मैकेनिज्म। आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो देख लो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप जो यहाँ पे फॉर्म होगा बराबर, इस अल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है ये इसके साथ क्या करेगा, मैं चाहिए तो दिखा देती हूँ। अब सपोज यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर है H, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा टूवर्ड्स दी कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, एंड दिस विल बी O नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पर वो O नेगेटिव बनेगा तो ये आपका क्या होगा, HOH बनेगा आगे जाके। तो रुको, मैं सॉल्व चाहिए तो करके देती हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको PCC-NH4Cl में तो पहले आपको CHO मिलेगा, बट फॉर द दिस स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू शो द मैकेनिज्म पार्ट। तो आपको ये मिला, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीटली यहाँ पे तो रिंग फॉर्म होगा, पहले ये हुआ यहाँ पर, और जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा ना, तो ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन जनरेट होगा आपका बराबर। तो आफ्टर गेटिंग द प्लस साइन ओवर हियर, अब ये तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन है बराबर, और यहाँ पर आपको मिला O नेगेटिव, जो H यहाँ पे हम लोगों ने कंबाइन कर लिया H प्लस के साथ बराबर, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था ना, तो ये यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, तो आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, आफ्टर गेटिंग दिस टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट, एक तो प्लस साइन आपके पास यहाँ पर एक H है, और दूसरा H जो है आपके पास यहाँ पर है, बट अगर मैंने इस H प्लस को यहाँ पर माइग्रेट किया तो यू विल गेट द लेस सब्स्टिट्यूटिव अल्केन विच इज नॉट द फेवरेबल अकॉर्डिंग टू योर हफमैन प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो H यहाँ पर जो है, ये वाला H यहाँ पर इसको माइग्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो आफ्टर माइग्रेशन ऑफ दिस H ग्रुप, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जस्ट टेक अ लुक, यू विल गेट हियर डबल बॉन्ड, ये आपको ऐसे मिलेगा, OH ग्रुप यहाँ पर मिलेगा, ये आपको। अब यहाँ पे अगेन आपका OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप में अगर इसमें मैंने फिर से PCC डाला, सो दैट ग्रुप कन्वर्टिंग इनटू दिस ग्रुप, तो इसका होगा कीटोन ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म विल बी टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा, तो आपको चेक करना है विथ PCC अनदर, दूसरा कौन सा आपको रिएजेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया गया, अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड डिसाइडेड द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब 11th 10th वाला देखो, बोरान कंटेनिंग कंपाउंड दिया हुआ है CH2, अब यहाँ पे OH नहीं है बट PCC है, बट फर्स्ट सेक्शन में आपको दिया है बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड, बोरॉन कंटेनिंग रिएजेंट, तो वो पहले कन्वर्जन करेगा। तो यहाँ पर इन दिस केस क्या होता है, द 1 ऑक्टीन, ये ऑक्टीन है एक्चुअली फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 ऑक्टीन जो है यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द ऑक्टेनल ग्रुप बाय यूजिंग द डिसअमाइल बोरेन बाय फॉलो द ऑक्सीडेशन विद द PCC। तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा ऑक्टेनल। ऑक्टेनल का मतलब यहाँ पर है C, रुको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देन 7, अब यहाँ पे होगा CHO। तो आपको ये वाला प्रोडक्ट इसमें मिलेगा डायरेक्टली ऑक्टेनल, ठीक है। दिस इज हाउ सिंपली। अब यहाँ पे देख लो नेक्स्ट है, ये एक्चुअली पूछा था क्वेश्चन आपको दिसंबर 2012 में, जिसमें दिया था आपको cis but 2 in 1,4 डाइल, पहले तो स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हमेशा क्वेश्चन में ना फाइनल जो आप नेट का अगर पेपर देखोगे वहाँ पे आपको अलोन PCC नहीं मिलेगा, दिस रिएजेंट हैज़ टू बी कंबाइंड विद द अनदर रिएजेंट, और उसमें आपको रिएक्शन निकालना होता है। तो आपको हर एक रिएजेंट का सबसे पहले तो रोल पता होना चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी कंप्लीट। तो ये 4 मार्क्स के लिए दिसंबर 2012 में। अब आप अगर ये फर्स्ट जो रिएजेंट देखोगे ना, CH2I2 जिंक कॉपर एंड CH2Cl2, ये बेसिकली आपका है सिमोन स्मिथ रिएक्शन,
रिएक्शन जो कि प्रोपोनेशन का काम करता है, जिसमें CH2 जो होता है बॉन्ड ऐड होता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो जनरली इसमें जो आपका जो प्रोडक्ट होता है ना स्टूडेंट, ये कैसे फॉर्म होगा यहाँ पर, जस्ट टेक अ लुक। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर है आपका जो गिवन जो कंपाउंड है उसका, OH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है आपका H और H, ये है सिस बिटवीन 1,4 डायोड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सिमोन स्मिथ रिएक्शन से इन द स्टेप 1 फर्स्ट रिएजेंट के साथ जो आपका रिएक्शन जो कैरिड आउट होगा वो होगा सबसे पहले तो साइक्लोप्रोपोनेशन होगा। ये आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, रिएजेंट का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ, व्हाट इज द सिमोन स्मिथ रिएक्शन, आप देख लेना। तो इसमें आपका कन्वर्जन होगा आफ्टर द साइक्लोप्रोपोनेशन। नेक्स्ट क्या होगा, द वन ऑफ द हाइड्रोक्सी अल्कोहल जो ग्रुप है वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, आपका CHO ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो देख लो इन द नेक्स्ट केस PCC जैसे ही मैंने डाला, ये हुआ यहाँ पर H, ये OH में वैसे, तो ये जो है वन ऑफ द ग्रुप विल बी फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू द अल्डेहाइड। देन अगेन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे आर गोइंग टू बी अटैक टू द कार्बोनिल ग्रुप। और नेक्स्ट स्टेप सेम वही जो हम लोगों ने अर्लियर मैकेनिज्म में पढ़ा था, यहाँ पे साइक्लिक रिंग फॉर्म होगा एंड देन वैसे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेनेवर यू हैव द 1,4 और 1,5 डायल, वहाँ पे आपको लैक्टोन मिलेगा साइक्लाइजेशन। सो फर्दर मैकेनिज्म कैरिड आउट करने के बाद जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो अल्डेहाइड दोनों ग्रुप कन्वर्ट नहीं होगा तो ये तो ऑप्शन है, एसिड भी बनता नहीं है, लैक्टोन बनेगा बट कौन सा, स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर जरूरी है। आप अगर यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन की पोजीशन ऑन द सिमिलर साइड सी सेव, तो जो स्ट्रक्चर जो पॉसिबल होगा वो होगा आपका ये वाला, ठीक है। इफ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द इन द केस ऑफ द PCC, सो यू शुड रिमेंबर वेन एवर यू हैव द सिंगलेट टाइप ऑफ द कार्बन, मतलब CH2 ये सिंगलेट होता है ना, तो वो एक्चुअली आपका हमेशा होता है स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर रिएक्शन होती है, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास अगर कोई ऐसा CH2 ग्रुप है जो कि ट्रिपलेट स्टेट में है, तो वो हमेशा आपको देता है स्टीरियो सिलेक्टिव। या आपको फाइनल में स्टीरियोकेमिस्ट्री के टाइम जरूरी होगा, ठीक है। तो इसमें आपका आउट ऑफ द 4 ऑप्शन विच वन विल बी द राइट ऑप्शन, द फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो ये आपको एक्चुअली पूछा गया था दिसंबर 2013 में, ठीक है। आई होप सो मैंने इतने सारे जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए, आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड properly, but still if you have any doubt regarding this student, so you should ask me. I definitely resolve your all the problems, ठीक है। now here time to solve the homework question। तो आपको अगर ये सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने कुछ एप्लीकेशन बेस्ड PCC के क्वेश्चन दिए, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लो। सो दे आर टोटल आई एम गोइंग टू बी सॉल्व, देयर आर टोटल 11 क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर आई एम जस्ट गिविंग द टोटल 26 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए, जिसमें आपको जैसे कि मैंने बोला था एप्लीकेशन पार्ट में यू आर गोइंग टू बी रेड्यूस एज दी फ्यूरेन रिंग सिस्टम को आप रेड्यूस करते हो, देन देयर विल बी द इफ अल्काइन ग्रुप विल बी प्रेजेंट, तो आप कैसे उसको रेड्यूस करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। तो उनका बाय एडिंग द PCC ग्रुप हाउ यू आर गोइंग टू बी कन्वर्टिंग इनटू द कार्बोनिल डेरिवेटिव। तो ये सारे एग्जांपल्स है, उसमें से ये वाला एग्जांपल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्यूरेन रिंग सिस्टम कैसे कन्वर्ट होता है और डीऑक्सीमेशन कैसे कन्वर्ट होता है। तो डीऑक्सीमेशन में मैं चाहिए तो इसका आपको प्रोडक्ट बताती हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, डीऑक्सीमेशन में डायरेक्टली ये वाला कंप्लीटली ग्रुप कन्वर्ट होता है PCC से इनटू द कीटोनिक ग्रुप। तो आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका कीटोन, ठीक है। तो वेन एवर यू विल गेट द ऑक्साइम ग्रुप, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता है, कीटोन में। तो एक एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखना है बाय यूजिंग द PCC। और सेकेंड 17 वाला भी मैं बताती हूँ, चाहिए तो आपको देख लीजिए। वेन एवर यू विल गेट द सच टाइप ऑफ द कंपाउंड, द फ्यूरेन रिंग सिस्टम आपको अगर मिलती है, तो फ्यूरेन में यहाँ पे आपका रिंग साइज 1 नंबर से यहाँ पे आपका हमेशा बढ़ता है, ठीक है। एंड यू विल गेट द फाइनल। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग सबसे पहले कन्वर्ट हो गया आपके 6 मेंबर रिंग में फ्यूरेन की, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH, और आपको ये वाला रिंग यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे R डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये फ्यूरेन रिंग सिस्टम का चाहिए तो मैं आपको प्रोडक्ट बता देती हूँ हाउ दे आर। पहले तो क्या होगा, जो क्रोमियम जो ग्रुप होता है ना आपका, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, और चाहिए तो जस्ट टेक कर लो। देखो ये सबसे पहले तो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा ओरिंग, और आपका जो क्रोमियम जो है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रोमियम के दोनों जो ऑक्सीजन जो होते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये बॉन्ड बना लेती है इसके साथ, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है O नेगेटिव। सो यू विल गेट दिस फर्स्ट मोइटी, यहाँ पर है आपका R और OH, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आपका ROH ग्रुप अटैच, ये है ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड माइग्रेट होगा, तो यू विल गेट दिस फर्स्ट। देन द ऑक्सीजन जो होते हैं क्रोमियम के, बोथ आर गोइंग टू बी
मेकिंग अडक्ट विद दिस फ्यूरान रिंग। तो ये अडक्ट बनने के बाद इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन वो देख लीजिए। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, द क्रोमियम एंड ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये यहाँ पे कंसर्टेंट मैकेनिज्म, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। इमीडिएटली ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होकर ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होकर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सो दिस काइंड ऑफ द मैकेनिज्म विल बी टेकिंग प्लेस एंड फाइनली ओवर हियर यू विल गेट ओके। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा स्टूडेंट, ये यहाँ पर आपका तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, तो ये यहाँ पर बना डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मिला आपको CH3, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिलेगा डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे आपका R ऑलरेडी था और यहाँ पर आपका है OH जो ग्रुप ऑलरेडी अटैच है। तो इस काइंड ऑफ के आपको मोइटी मिलेगी। एंड अगेन फिर यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड जो है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा एंड देन फाइनली यू विल गेट द साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज हाउ इनटू द फ्यूरान रिंग सिस्टम यू विल गेट ओवर हियर स्टूडेंट व्हाट 6 मेंबर रिंग। तो ये यहाँ पे फ्यूरान का बहुत ज़रूरी एग्जांपल था एप्लीकेशन में, जो कि आपको हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। गेट में हमेशा ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे और नेट एग्जाम में, तो ये भी ट्राई कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी द लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। आई थिंक सो आपको समझ में आया तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड कमेंट में योर आंसर। इसका चाहिए तो मैं आंसर शीट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देती हूँ, बट फर्स्ट लुकिंग इनटू द फाइनल आंसर, पहले ये आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर शीट डाला है उसके साथ मैच करके देख लो कि वेदर ये राइट है कि नहीं है। चाहिए तो आप ये पूरा स्क्रीनशॉट निकाल के लो। ये 12 से लेकर के अप टू 23, 17, 24 है और बिलो देयर विल बी द 4 मोर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, प्रैक्टिस इट and just comment your final answer. Okay, so thank you so much watching this video. If you really like this video, don't forget to subscribe us. Thanks a lot.